There are times in our lives where nothing makes sense. We feel something is missing. ये एक ऐसा टाइम था जिसमें मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी किसी भी चीज़ की. Something was off. मुझे ये जानना था ये मूड स्विंग्स, feeling low and demotivated when everything seems fine. Feeling alone when you choose to be alone. Wanted to feel love but not ready to be loved. यार सब कुछ सही चल रहा होता है तो एकदम से क्या हो जाता है just feel very weird. Is this normal or can I fix it? But I think you just have to go through it. I'm not sure कि अभी क्या करना है but I somehow managed to find the answers and my experience was shocking. I was not ready for it. ना ही आप हो. Maybe it's a clinical issue. Or maybe physical. और शायद mental. Fuck it. Let's go all in. First, I will try to fix my sleep. हम सबको लगता है कि हमारी स्लीप सही है, but we are extremely wrong. you and I have to improve our sleeps. There are no reasons not to. Because if your sleep is not good, then aaj na kal you will end up in the void and you will be betrayed by your own mind. I read a lot about sleep and recovery, how it works and what I can do to improve it. Something जो आपके normal life में घुल मिल जाए and उसको आप sustain कर पाओ. रिसर्चेस बोलती है कि अगर आप कूल इन्वायरमेंट में सोओगे तो आपकी नींद बेटर होगी एंड आपका रूम डार्क होना चाहिए एंड अवॉइड हार्श लाइट्स 1 hour बिफोर स्लीप. दिस विल हेल्प यू रिलैक्स एंड आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा दैट दिस इज टाइम टू टर्न ऑफ. नो स्क्रीन्स बिफोर स्लीप. दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस, सो आई डोंट थिंक यू नीड एक्सप्लेनेशन. मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर बेटर स्लीप एंड रिकवरी. इसकी सही क्वांटिटी आपको हेल्प करती है इन रिकवरी एंड इट इम्प्रूव्स योर स्लीप क्वालिटी. फिक्स टाइम पे सोना एंड उठना, ये हमारे बॉडी को एक रिदम में रखता है. आई डोंट स्लीप अर्ली, ना ही मैं 5 बजे उठता हूँ, बट हैविंग अ फिक्स स्लीप टाइम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. Second, physical health. I was 51 kgs and for my height, I was underweight. So maybe that's the issue. Physical activity and diet. Okay. Hitting gym 6 times a week, बिना एक भी दिन छोड़े. Self trained, no personal trainer. You can learn along the way. I mean, अभी तक सब वैसे ही किया है. Make me all black with your civil rights. You demand that I euthanize your name. Walk ahead. Diet, hit 120 grams of protein with 2,400 calories every single day. You cover us in shame and This might be the hardest thing for me, at least for someone जिसने आज तक breakfast नहीं किया. high school blues. Walk ahead. So training is one thing. Diet is another. But last but not the least, recovery. Creatine, Sun starts choking. whey as a supplement. Anyone stand this nonsense? Less is more here. Eat Omega-3 fish oil, vitamin D3 plus K3 for bones, heart and muscle recovery. This might be the craziest experience I have ever had in my life. And मुझे पता नहीं था इसमें इतना सब हो जाएगा. now. Rats can shine and jokers got silver lining. And Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk, Third, work life. walk ahead. This is something जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट हूँ. फोकस एंड प्रोडक्टिविटी. फोकस एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ.
एंड आई कैन से ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने ट्राई करी है। बट नथिंग बीट्स द गुड ओल्ड फोकस ब्लॉक। 2 hours फोकस ब्लॉक पर डे, 1 in the morning, 1 in the night, जहां आप लेजर फोकस के साथ 1 से 2 आवर के ब्लॉक में काम करते हो। You just lock in and kill it. I am also using physical timer ताकि मैं टाइम का ट्रैक रख सकूं बिना मोबाइल को छुए। No distraction, mobile on D&D in focus mode, of course. Fourth, mental health. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैंने हमेशा से निगलेक्ट किया है एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस। आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स बट प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग बुक्स, फिल्मिंग वीडियोज। शामें शामें तुझ में डलती मेरी शामें, दिल की बातें कहते जुबान लड़खड़ाए, आए जाए यही कुछ चीज़ें हैं जो शायद मेरी मेंटल हेल्थ को बेटर रखती है। मेरे ख्वाबों में बस मैं और तू, गेम्स, ट्रैवलिंग एंड मूवीज, ये चीज़ों ने मुझे कई बार अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज से बाहर निकाला। शामें शामें तुझ में डलती मेरी शामें, दिल की बातें कहते जुबान लड़खड़ाए। इवन अगर मैं याद करूं कि लास्ट टाइम मैं कब रोया था, तो शायद मूवी देखते हुए, एनीमे देखते हुए, या फिर कोई बहुत ब्यूटीफुल गेम कंप्लीट करने के बाद। बस मैं और So I don't know about my mental health anymore. So ये स्टोरी कभी सामने नहीं आती। I am doing this from December 25 without any intent कि मैं इसको शेयर करूँगा. But after all this, I wanted to talk about it. This was the craziest time of my life. I love tracking and technology. So I was doing the same here. मेरा फूड, वर्कआउट, स्लीप, वेट, टाइम, एवरीथिंग वॉज गेटिंग ट्रैक्ड। मैंने इसके बारे में पढ़ा, लिखा, सोचा, पूछा बिकॉज आई वॉज डेस्परेट टू गेट आंसर्स। एवरीथिंग वॉज गोइंग सो गुड कि मुझे इनविंसिबल लग रहा था। माई स्लीप वॉज इम्प्रूविंग, माई स्कोर एंड रिकवरी वॉज स्काई रॉकेटिंग। In 4 months, I was straight up to 60 kgs. My strength was increasing drastically. I was not feeling low. मैं हर दिन excitement में उठ रहा था। क्या यही होता है फिट, प्राउड, अल्फा ह्यूमन फील करना? Maybe and maybe not. But one thing is true. If you commit to something, then you have to go all in. It doesn't matter what you are doing. Just try and give your 100% to it. Nobody can predict the outcome. So make the choice you will regret the least. मैं अपने पीक पे था तब. I was feeling great. But as Jon Snow said, everything before but is usually bullshit. One night, something was off again. My sleep score जो पिछले टाइम से 90 के नीचे नहीं गया था, वो अचानक से डाउन होना शुरू हो गया। मेरा वर्क पे फोकस नहीं हो रहा था। What the hell is happening? अभी तो सब ठीक था। You were fine, having fun, and suddenly this? इवन मैंने सप्लीमेंट्स एंड वर्कआउट को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि इन्हीं में कुछ गड़बड़ है। आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड लुकिंग फॉर आंसर्स। क्या मेरी थॉट प्रोसेस गलत है या मेरी लाइफ में अब क्या मिसिंग है? वॉट इज रॉन्ग विथ मी? वाई आई एम लाइक दिस? क्या ये ऐसे होता रहेगा? वॉट इज हैपनिंग? दिस इज बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन काफ़ी अजीब स्पीसीज है। ये ओवर थिंक भी करता है एंड कभी कुछ करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता। बट फोकस रहना अपने लाइफ में जब तुम्हारी धज्जे उड़ी हो इज़ द ओनली वे टू फाइट दिस फेज। एंड वंस दिस इज़ ओवर यू विल रियलाइज कि शायद उतना भी बुरा नहीं था वो फेज। कुछ ह्यूमंस इसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड कुछ अपने आप को संभाल लेता है। यू लर्न हाउ टू से इट इज़ वॉट इट इज़ बिकॉज कई चीज़ें हैं अपने आसपास जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देन उनके बारे में स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा? आई नो ये बोलना काफ़ी आसान है। सो what do you expect? Cry about it? Hell nah. We are better than this. I mean, I did cry sometimes, but who cares about men tears anyways? The only way to fight any type of low phase, चाहे वो health हो, your job, your mind, your breakup,
जब आप खुद के ऊपर सच में डिसिप्लिन रहे हुए, यू विल पुश योर सेल्फ एंड जस्ट ट्राई टू बी लिटिल बेटर आपके प्रीवियस सेल्फ से, देन ओनली आप उससे फाइट कर सकते हो. डोंट लुक फॉर क्लोजर कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसने ऐसा क्यों बोला. नो, इट इज़ वॉट इट इज़. कुछ चीज़ों के आंसर्स नहीं होते एंड शायद हमें ढूंढने भी नहीं चाहिए. शायद इसका आंसर हमेशा से मेरे पास ही था जो मैं देख नहीं पाया. Is it really too late? ऐसे ही हम हमारे आसपास की चीज़ों से ब्लाइंड होता है. वी डोंट सी थिंग्स वी ऑलरेडी हैव एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर, एंड वंस यू लूज इट यू फील एम्प्टी. डोंट लूज होप बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग which is keeping us alive. Everything being fucked doesn't require hope, but hope requires everything being fucked. आपको लगेगा कि आपकी लाइफ खाली लग रही है and nothing is working, but ऐसा नहीं है. जो भी चीज़ आप हर दिन करते हो, these dots are connected to each other, and at some point in life वो सब dots connect होंगे, and then सब कुछ, कितनी भी गंदी, घटिया, traumatizing चीज़ will make sense. इवन इफ़ यू डिसाइड कि कल से आप जिम जाओगे, या फिर अपने लाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लोगे, या फिर दारू सिगरेट छोड़ के अपने रियलिटी को फेस करोगे, देन आई विल विन. विनर नेवर लूजेस होप, एंड एट द एंड विनर टेक्स इट ऑल. यू आर द विनर. सी यू एट द टॉप. We have enough wine.